ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر پر مٹی ڈالنے کی دیر ہے، ایک دائیں طرف سے کیڑا، ایک سامنے سے کیڑا، ایک بائیں طرف سے انسان کے۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر ہم لے کر آئے ہیں مولانا عبدالحنان صاحب کا ایک خوبصورت بیان۔ چلیے ساتھ مل کر سنتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ پیروں کی طرف سے 3 کیڑے نکلتے ہیں، بچھو سانپ تو بات ہی کوئی نہیں، 3 کیڑے نکلتے ہیں۔ پہلا کیڑا انسان کی پلکیں اٹھاتا ہے، اس کے آنکھ کے ڈیلے میں ڈنگ مار کے سارا پانی چہرے پر نکال دیتا ہے۔ آ جا بھائی سنو سیرت نبی کی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں عذاب قبر بتا رہا ہوں لوگوں، تمہارا یہ حال ہو گیا۔ اگر میں لوگوں عذاب قبر دکھاؤں، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ دوسرا کیڑا انسان کی دائیں طرف سے نکلتا ہے، کفن کو پھاڑتا ہے، یہ انسان کی دنی، یہ ناف، یہ سنڈی، اس کے اندر جب کیڑا مارتا ہے انسان کے پیٹ تک کی اتنیاں ساری پھٹ جاتی ہیں۔ تیسرا کیڑا انسان کے پیروں کی طرف سے نکلتا ہے، پیروں کے ناخن کے اوپر ڈنگ مارتا ہے، ماتھے تک کے جتنی ہڈیاں سب سارے کے سارے جوڑ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی اوقات۔ یارو خدا واقعی اللہ کے واسطے پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، تمہاری مرضی تم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اس وقت بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ کے بندے نبی کے امتی ہو کے بیٹھنا، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا۔ اس زبان سے گانے کی عادت، غیبت کی عادت، چغلی کی عادت، گالیوں کی عادت اس زبان سے چھڑا دو، اور اللہ اللہ کا ذکر اس زبان کو اتنا یاد کرا دو، دنیا کی زندگی میں اتنا اللہ اللہ کرو کہ قبر کے اندر جانے کے بعد یہ زبان اللہ اللہ کہنا نہ بھولے۔ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سفر میں، حضر میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جب وہ تمہیں نہیں بھولتا تم ان موقعوں پر اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک آدمی ایک سیکیورٹی گارڈ رکھے 20,000 پیسے کم نہیں۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں نے بھی کہیں نہ کہیں کتابوں میں پڑھا ہے، فرما ایک آدمی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، اللہ نے 16 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے پاس کھڑے کر رکھے ہیں، 16 سیکیورٹی گارڈ۔ پردے کے اندر ایک نظام ہے، یہ سانس والی نالی، یہ خوراک والی نالی، روٹی کا لقمہ انسان منہ میں ڈالتا ہے، سانس والی نالی پر فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ اندر نہ جائے، جب سانس لینے لگتا ہے خوراک والی نالی پہ فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ ہوا اندر نہ چلی جائے۔ دو بڑی عزیزو، یہ آنکھ ہے، دکان بنائی، کروڑوں روپے کا دکان کے اندر سامان ڈالا، 20,000 روپے کا شٹر نہیں لگاؤ گے دکان بیکار، مالک کو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ اللہ نے یہ دکان، اس کے اندر عزیزو ہر چیز اس میں نظر آ رہی ہے، جو دیکھ رہے ہو زمین پہ بیٹھ کے سورج کو دیکھ رہا ہے، زمین پہ بیٹھ کے چاند ستاروں کو دیکھ رہا ہے، لیکن عزیزو میرے عزیزو جب رات کا وقت آتا ہے اللہ جل شانہ ان شٹر کو گرا دیتا ہے، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے یہ آنکھ پہ شٹر خود بخود گر جاتا ہے، جب صبح کا اجالا ہوتا ہے کوئی شٹر کو نہیں اٹھاتا، اللہ خود بخود آنکھ کے شٹر کو اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا او میرے بندے، تیری ساری زندگی کی عبادت ان پلکوں کا بدلہ نہیں دے سکتی، بتا میری نعمتوں کا بدلہ تو کیسے دے گا؟ اللہ اکبر۔ کوئی چارجنگ نہیں، کوئی چھوٹا موٹا سیل کوئی نہیں، خود ہی گر گئی، نیند آنی شروع ہوئی، یقین جانو اماں نے چادر تو جسم پہ دی، اللہ نے اس آنکھ والی چادر پر اللہ نے خود بخود پردہ گرا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ دو گندی تہذیب، چھوڑ دو گندی گفتگو، یہ میرا بیان میرا عزیزو پوری دنیا کے اندر جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ ایک دن غصے میں مولانا، میں نے پتہ نہیں کہاں تقریر کی، میرے منہ سے عجیب سی بات نکلی،
मेरे नंबर पर फौरन यूट्यूब पर मेरे अजीजों, व्हाट्सएप पर पता नहीं फौरन एक मैसेज आया एक सिख का, यूं उसने हाथ जोड़े, कहा पाजी जल्दी करो, तुम उस नबी की जिंदगी बयान करते हो जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं। आपको नहीं पता, आपकी तकरीर मुसलमान नहीं सुनते, हम जैसे सिख सुन सुन के हम भी तुम्हारे नबी के आशिक हो चुके हैं। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, अज़मत मकाम मुस्तफ़ा, ताजदार खत्मे नबूवत। स्कॉश के इंडिया के खिलाड़ी हैं, यकीन जानो हिंदू, अनकरीब इंशाअल्लाह फकीर के हाथ पे कलमा पड़ेगा, फिर दुनिया को पता लगेगा खुदा की कसम मोहम्मद जलील करने नहीं आया, मोहम्मद इज्जत देने के लिए आया। ना बोलो, हम तो फकीर से लोग हैं बाबू, जहाँ दुकान खोली हमने तो हुजूर वाली सुन्नत की खुशबुएं बेचनी शुरू कर दी। आए जिसका जी चाहे, ले जाए जिसका जी चाहे। हमारी तो दुकान के फ्रंट पर ही मोनोग्राम लिखा हुआ है, इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। गाली तो मेरा अजीजों मैं तब दूं, बुरा तो मैं लोगों को तब कहूं, मुझे कुरान बयान करने की मेरे अजीजों इसके अलावा कोई फुर्सत मिले। एक दिन में 4 प्रोग्राम, एक दिन में 5 प्रोग्राम, एक दिन में 6 प्रोग्राम, पिछला हफ्ता सिंध के अंदर, ये हफ्ता सुबह सरहद के अंदर, ये हफ्ता पंजाब के अंदर, अगला पता नहीं मेरे अजीजों कहाँ जाएगा। लेकिन खुदा पाक की कसम है, इस कुरान ने इतना ऊंचा कर दिया, इतनी बरकत कुरान की है। वजीर आजम का इस्तकबाल खुदा की कसम ऐसा होता नहीं जितना कुरान वालों का इस्तकबाल होता है। ये देखो ना लोगों, ये मेरा रिश्तेदार नहीं लगता, अपनी हलाल कमाई मेरे कदमों पे फेंक रहा है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। खुदा के वास्ते जुबान का मीठा बोल। याद रखो संगतियों, याद रखो मेरे दोस्तों, जब जनाजा जाए लोग कलमा शहादत का नारा लगाते हुए जाए। एक आदमी ने कलमा शहादत भी पढ़ा और तुम्हें कंधा भी दिया, और उसने जब जनाजे से कंधा दे के फारिग हुआ, यूं करके अपना कंधा झाड़ के कहा चंगा होया मर गया। कयामत का दिन होगा, वली गौस कुतुब अब्दाल जनाजे के अंदर आए होंगे, अल्लाह फरमाएंगे जनाजे का सवाब बाद में देखूंगा, रोजे हज का सवाब बाद में देखूंगा, कुरान की तिलावत का सवाब बाद में देखूंगा। पहले उस आदमी को बता क्या दुख दे के आया जो तेरे जनाजे में कह रहा था अच्छा हुआ मर गया है। ए 10 पहले फरिश्ते इंसान की नेकियों की गठड़ियां उठा के लेके आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इसके पास रख दो, इसमें क्या है नमाज, इसमें क्या है रोजा, इसमें क्या है हज, इसमें क्या है फलाने फलाने सवाब। अल्लाह फरमाएंगे सारे सवाब कबूल करूंगा, पहले ये बता जब घर से तेरा जनाजा उठा कितने बंदे जनाजे की चरपाई को पकड़ के रो रहे थे। अल्लाह 4 बेटियां 2 बेटे और 1 बीवी, और खुदा की कसम ये मेरी बहनें माएँ जो 300-400 की तादाद में बैठी हैं, आज फकीर इनकी नुमाइंदगी करेगा। ये वो नौकरानियां हैं जब से तुम्हारे घर में लाल जोड़ा पहल के आई बूढ़ी हो गई, इन्होंने आज तक कभी अपनी नौकरी की तनख्वाह का तुम्हारे से तकाजा नहीं किया। मेरी बहनों खुदा के वास्ते तुम भी दुनिया से अपनी नौकरी की अपनी तनख्वाह का तकाजा नहीं करना। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, अगर पर्दे में रह के चली गई, हया का दामन संभाल के चली गई, बच्चों की तरबियत अच्छी करके चली गई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रमजान मुबारक के रोजे रख के चली गई, अपने शौहर के हक अदा करके चली गई, और शौहर ने मरते हुए कह दिया मैं तेरे से राजी हो गया, हुजूर ने फरमाया ऐसी बेटी को मुबारकबाद दो, शौहर से 500 साल पहले अल्लाह उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा।
तीन शख्सों की जमानत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली। पहला वो आदमी, आपने फरमाया जो आदमी गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा करे फिर दोबारा गुनाह ना करे। दोबारा गुनाह करना इतना ऐसा नामुमकिन हो जाए जैसे जानवर के थनों में से दूध निकालने के बाद दूध डालना नामुमकिन हो जाए। ऐसे गुनाहों वाली जिंदगी से नफरत करे। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह नाल जाकर हर जलसे में उस उम्मती को मुबारकबाद देना, कयामत के दिन लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं तौबा करने वाले को तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया मैं हाथ पकड़ कर जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। दूसरा वो आदमी, ओ यारो ओ सगदियो ओ बेलियो ओ भराओ यूं ना का करो, बच्चे बोते ने किथों खवावा किथों पवावा। ओ मेरे अजीजो, कब बच्चे खुशहाल घराना नहीं हुआ करता, नेक बच्चे खुशहाल घराना हुआ करता है। कभी एक बेटे की वजह से बाप खुदकुशी करता है, कभी 4 बेटों की वजह से बाप जन्नतुल फिरदौस का हकदार बन जाता है। 11 रबीउल अव्वल की रात मेरा अजीजों, मुल्तान में रात तकरीबन 1:15 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई। ये उस दिन मेरा छठा प्रोग्राम था। यकीन जानो 3:45 बजे दुआ की। अगले दिन सफर लिए भक्कर करोड़ लाली सन का पता नहीं कहाँ का था, जिनके घर के अंदर मेरे अजीजों ग्राउंड में बयान हुआ। वो घर वाले कहने लगे मौली साहब बड़ा मेरा उनसे प्यारा ताल्लुक है, 16 बहन भाई या 14 बहन भाई। सानों कहने लगे मौलाना पिछले साल रात 1 बजे अब्बा का इंतकाल हुआ। अब्बा को बेचैनी हुई, मुझे बुलाया का सैफुल्लाह जा वलीउल्लाह को फोन कर, किफायतुल्लाह को फोन कर, नसरुल्लाह को फोन कर। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बेटों के नाम में भी अल्लाह याद आ रहा का 5 भाई मुल्तान के अंदर थे, 5 को फोन किया, 4 चफेरे आके खड़े हो गए का पढ़ो सूरह यासीन, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया था। पूछते थे ना लोग, इतने बच्चे हैं सबको हाफिज बना रहा है, किसी को स्कूल पढ़ा दे, किसी को फलाना काम करा दे। मेरे बच्चों में यूं इधर की बात सुन के इधर से निकाल कर लोगों की झिड़कियां सुन के मुस्कुरा दिया करता था। पैसे किसे बुरे नहीं लगते। कभी कभी ऐसे वक्त भी आ जाया करते थे मेरे बच्चों, रोटी थोड़ी देख कर तेरी माँ और तेरा बाप हाथ खींच लिया करते थे। ओ जवानों अजीजों, खुदा की कसम मेरी हिम्मत नहीं मैं आपसे गुफ्तगू करूं, थका पड़ा हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, बोल के जाऊंगा। कदे ना कहा जे अपने मापिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। अगर इतनी बात पर तेरे बाप ने रोना शुरू कर दिया, मरना फिर कहीं और चला जा, मर गया खुदा की कसम बेड़ा गर्क हो जाएगा। कब मुझे मेरे बच्चों ने सूरह यासीन सुनाई, जब इस जुमले पर आए फसुब्हानल्लज़ी बियदी मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। अब्बा ने आंखें खोली, कहा चलो बेटे चलो जल्दी करो, कमरे से चले जाओ, फरिश्तों की जमात मुझे लेने के लिए आ रही है। आखिरी इंसान मरते वक्त तो कूड़ नहीं मारता, उसका घर उसके सामने होता है जहाँ उसने जाना होता है। और रफीक साहब कहने लगे बच्चे बाहर चले गए, कहा मौलाना हमें ऐसे लगा कमरे में शोर की आवाज आई, रश हो गया। कहा उधर बाप की रूह निकली, खुदा की कसम सारे मकान पर पता नहीं आसमान से खुशबू की बारिश हो रही थी। इसलिए आप हजरात से अर्ज करूंगा, इतनी अल्लाह जल्ला शानू ने खूबसूरत मस्जिद अता फरमाई। मेरे प्यारों मेरे दोस्तों, अगर घर से दिल घबराए, दुकान पर बैठने से दिल घबराए, बाजार में बैठने से दिल घबराए, फौरन अल्लाह के घर में आ जाया करो। अल्लाह के घर के अंदर मेरे अजीजों अपने आप को जमा लो और मांगो अल्लाह से मौत। अल्लाह मकान में न देना, दुकान में न देना। अल्लाह मौत आए तो अपने घर में अता फरमाना, मौत आए तो बैतुल्लाह के तवाफ करते मौत देना, मौत आए तो हुजूर के रोजे पर अल्लाह सलाम पढ़ते मौत देना, मौत आए रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ते मौत देना। अल्लाह अकबर मुसलमानों का इमाम है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। एक हज किया, दूसरे हज के लिए इस दर से मदीने से बाहर कदम नहीं निकाला, मौत आ जाए। जब उनको गुस्ल दिया गया, दोनों तरफ कंधे पे जख्मों के निशान थे। किसी ने पूछा क्या करता था? जनाजा उठाने के बाद एक शागिर्द ने बताया, जो मदीने की गली का रास्ता था, इमाम मालिक ने
कभी बीच रास्ते के चल के नहीं देखा, गली के किनारों पे चला करता था, इतनी एहतियात किया करता था कि दीवार के साथ कंधे के सिट जाया करते और जख्म आ जाया करते। कभी बीच में क्यों नहीं चला करता था? कि मदीने का एहतराम था कि उस जगह मेरा पैर ना आ जाए, जा रसूलुल्लाह ने कदम रख लिया। तुम उनके नजदीक गए जिन्होंने ना तुम्हारा ईमान छोड़ा ना तुम्हारी इज्जतें छोड़ी। हमारे पास आओ, खुदा की कसम हम तुम्हें बताएंगे सही माने में आज के रसूल कौन है। ये भी मेरा मौजू कोई नहीं, आज बड़े प्यारे लोगों का मजमा है। तुम्हारी तवज्जो दिल की तरफ, तुम्हारा दिल इस वक्त अल्लाह की तरफ है। अल्लाह फरमाएंगे हाँ, नमाज रोजा हज ज़कात सारी चीजें बाद में। कितने बंदों को छोड़ के आया या अल्लाह? 4 बेटे 2 बेटियां 1 औरत। मैं मरूंगा, मेरा भाई चौथे दिन दुकान खोल के बैठेगा, मेरी बीवी के सर पे हाथ रखे कहेगा अच्छा भाभी अल्लाह तुझे सब्र दे। बेटे को कहेगा बेटे तुझे कोई काम हो चाचे के पास आ जाना। दादा भी कहेगा मैंने पुत्र दियार बड़ी सतान दी है, वो भी चौथे दिन हुक्का पीने चौक में चला जाएगा। एक औरत जिसे तू पैर की जुत्ती कह के गया था, जिसे सारी जिंदगी तूने मुस्कुरा के न देखा, वो कोने में बैठी। इससे पूछ तो सही तुझे ज्यादा गम था? कहा इतना गम था कि जिंदगी देने वाले ने इसका गम बनाने के लिए मुझे 4 महीने 10 दिन का वक्त दिया कि खबरदार खबरदार 4 महीने 10 दिन तक यहाँ बैठ जा, लाल जोड़ा नहीं पाना, सुर्खी नहीं लगानी, किसी खुशी में नहीं जाना, खामोश होके बैठ जा। हत्ता के खबरदार तुझे मुस्कुरा कर भी किसी से बात करने की इजाजत नहीं। उसे रो जो बेवा का तुझे ताज पहना के चला गया। ओ यारो खुदा की कसम, खुदा की कसम, कदर करो अपनी बीवी की, कदर करो अपनी बेटी की, कदर करो अपनी प्यार की, मेरे अजीजों बहनों की। जब ये दरवाजे पर आवे, बीवी घर में मुंह ना बनाया कर। बहन बेटी तेरे घर में आए, बेटी तेरे घर में रही ना कहा कर, पता नहीं मुसीबत तो कदा जान छुटेगी। बहन दरवाजे पर आए देख के कमरे में न चला जाया कर, बल्कि खुदा की कसम बहन बुर्का पहन के नहीं आ रही, बल्कि अल्लाह की तरफ से खुदा की रहमत तेरे दरवाजे पर आ रही है। अल्लाह फरमाएंगे सारी बात अपनी जगह, सारी बातें मेरे बंदे ठीक है, लेकिन एक बात बता, नमाज रोजा हज ज़कात उस वक्त कबूल करूंगा। बता उनको रोता छोड़ के आया, मुस्कुराता छोड़ के आया। बता जिसे कुरान के साए में अपने घर में लेके आया था, उसका हक पूरा करके आया कि नहीं। यकीन जानो सकती हो, अगर सर झुक गया खुदा की कसम अल्लाह सारी बातों का सवाब मुंह पर मार के रख देगा। सरवरे कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रात सैयदा आयशा हुजूर के घर दुल्हन बन के बैठी हुई है। हुजूर नमाज पढ़ा कर तशरीफ लाए। रहमत वाले नबी फरमाते हैं मुझे भूख लगी थी, मैंने हुजरे का पर्दा हटाया, आयशा बैठी हुई है भोला पर। मैंने कहा आयशा का जी का, मैंने कहा रोटी का, कौन सी रोटी? मैंने कहा पकाई नहीं। कहने लगी अब्बा के घर में आज तक गुड़ियों से खेलती रही, मुझे क्या पता आटा कैसे गूंथते हैं। ओ लोगो सोने नबी के लिए बाजार तो सजाते हो, सोने नबी के लिए अपनी जिंदगी भी तो सजाओ। नहू की ना अबू बकर को बुलाया, न गुलाम बेच के कहा किड़ी बच्ची नल किड़ी कोई न शादी कर दी थी। ऐसा कोई बात नहीं, मस्जिद में मैं उम्मतियों को दीन सिखाता हूँ, आज मैं तुझे रोटी पकाना सिखाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती कहती है आटे की कनाली ली, तसली ली, आटा डाला, पानी का बॉल लिया, गडवा लिया, आप अलैहिस्सलाम ने आटा गूंदना शुरू कर दिया। मुठिए भर भर के फरमा रहे थे ए आयशा ऐसे आटा गूंदते हैं। फिर पेड़ा हाथ में लिया, वाह अबू बकर तेरा घरा नहीं सारा। जिसने तेरे पे उंगली उठाई खुदा की कसम वो तुझे समझ ही ना सका।
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह अकबर फरमाती हैं, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने आटे का पेड़ा लिया, चूल्हे में आग जलाई, तवी चढ़ाई, फिर तवा गर्म हुआ, रोटी पकाई, अल्लाह अकबर पहला लुकमा तोड़ा, हुजूर ने मुझे अपने हाथ से खिलाया। अम्मा आयशा कहती मेरा तो वीरान आ गया। मैंने कहा खदीजा के पास वो आंख है जिसने रसूलुल्लाह को नबूवत का ताज पहनने के बाद सबसे पहले देखा, और मेरे पास भी वो सआदत है। और लोगों 9 अज़वाजे मुतारात हो, 10 अज़वाजे मुतारात हो, तुमने रसूलुल्लाह को पका के खिलाया, मुझे मेरे मुकद्दरों पे नाज है, रसूलुल्लाह ने मुझे पका के खिलाया। ये तुम्हारी बच्चों की माँ है, खुदा की कसम, न गर्मी न सर्दी, इनकी इज्जत का ख्याल किया करो। कम से कम बरादरी में औरों के अंदर में जुतियां मार ले किसी के सामने, जब जानवर को अपनी इज्जत का ख्याल है। खुदा की कसम इसकी गोद को तो अल्लाह ने नबियों का पगोड़ा बनाया है। अज़वाजी जिंदगी सीखनी हो, प्यार वाली जिंदगी सीखनी हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में मेरे अजीजों आना पड़ेगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आ जाओ, पूरी दुनिया को चैलेंज है इस मीडिया के जरिए, पूरी दुनिया को चैलेंज है इस प्रोग्राम के जरिए, आज के इस जलसे के जरिए जो कारी रफीक कासमी ने अपने साथ, अपने नमाजियों के साथ, उमूमी और खास मशूरे और तामुन के साथ सजाया। और जिन बच्चों ने आज कुरान पाक हिफ्ज किया, उनके सर पे दस्तार बंधी, माँ बाप बहन भाई सारे रिश्तेदार, मेरे अजीजों सारे के सारे मुस्तहिक है मुबारकबाद के। अल्लाह दुनिया की भी मुबारकबाद अता फरमा, आखिरत की भी मुबारकबाद अता फरमा। यकीन जानो इस वक्त सिर्फ इस उम्मती को एजाज है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा, वो अपनी नबी की जिंदगी को बता भी सकता है, प्रचार भी कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह जल्ला शानु के आखिरी नबी से पहले वाले नबी हैं। यकीन जानो आज ईसा का कलमा पढ़ने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, ठीक है वो ईसा रूहुल्लाह तो मान सकते हैं, लेकिन अपने ईसा की कामिल जिंदगी नहीं बता सकते। ईसा अलैहिस्सलाम पे मौत नहीं आई, ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, ईसा अलैहिस्सलाम के बच्चे नहीं हुए। अभी ये सीरत ईसा की नामुकम्मल है। जब दोबारा जमीन पर आएंगे, इसी उम्मतिया में से किसी उम्मतिया में बेटी किसी के साथ शादी होगी, इसी उम्मत में से कोई मौलवी साहब निकाह पढ़ाएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा होगी, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत का अमल आएगा। जब ईसा कब्र में जाएंगे तब ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुकम्मल होगी। हमारा नबी सूरत में भी इतना सोना और सीरत में भी इतना सोना कि हमारे नबी की जिंदगी जब तक ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नहीं मिल जाएगी, ईसा भी अपनी मुकम्मल जिंदगी नहीं दिखा सकता। विलादत वाली जिंदगी तो सबने सुनी, लोरियों वाली तो सबने सुनी। अज़वाजी जिंदगी के बंधन की और थोड़ी सी जिंदगी में सुना के चला जाऊं। जिनकी हो गई मेरे अजीजों, अगर तरीक़ेकार अच्छा नहीं था तो अल्लाह से खैर मांगे, और जिनकी नहीं हुई मेरे अजीजों अल्लाह से खैर मांगे। वो जिंदगी दे, वो शादी की खुशियां दे जो अल्लाह तूने नबी के यारों को राले रसूल को अता फरमाई थी। दो चीजों की जमानत दे के जाओ, दो चीजों की जमानत इंशाअल्लाह मैं हदीस के साए में बैठ के दूंगा। पहली चीज की जमानत, ओ मेरे यारो, मेरे प्यारो, ओ मेरे वीरो, पहली चीज की जमानत कि निकाह बेटी का हो तो माँ बाप के मस्जिद में करवाएंगे। लड़कों जवानों बारात शादी हाल में लेके जाना, लेकिन निकाह जैसा मुतबर्रक फरीजा मेरे अजीजों मस्जिद में करवाना। बेटियों खुदा के वास्ते अपने माँ बाप की पोजीशन को देख कर लाल जोड़े का सवाल करना। अगर अम्मा अब्बा परेशान है, माँ कमेटियां डाल डाल के तेरा जहेज तैयार कर रही है, और अब्बा रेडिया लगा लगा कर इस
اس عزت کو عزت کے ساتھ فارغ کرنے کی دعائیں کر رہا ہے، تو میری بچی جب تیرا باپ رات کو گھر آئے تو اس کے ہاتھوں پر اللہ اکبر کھردرے نشان دے کر، اس کے کپڑے کو داغدار دیکھ کر اپنے باپ کا ماتھا چوم کے کہا کر میرا ابا کیوں پریشان ہونا ہے، دعا کر اللہ مجھے ایسا گھرانہ دے جو جوڑا میں پہن نہیں ہوں مجھے اسی جوڑے میں لے کے چلا جائے۔ ابا تیرے برتنوں کی مجھے ضرورت کوئی نہیں، تیرے جہیز کی ضرورت کوئی نہیں، ابا مجھے دعاؤں کا جہیز دینا۔ پوری اسلام کی تاریخ میں ایک شادی ایسی آئی، فرمایا ایک باپ اپنی بچی کی ڈولی اٹھا کر 3 میل تک چل کے گیا، روتا آ رہا تھا، آنکھیں لال تھی۔ جب بوڑھے پر آیا لوگ کہنے لگے اتنا کیوں رویا؟ فرمایا میں نے لکڑی اور جہیز اور میں نے سونے چاندی کے جہیز دے کے دنیا کو چیلنج ہے، ایسا جہیز دیا کائنات ختم ہو جائے گی، کوئی اپنی بچی کو ایسا جہیز نہیں دے سکتا۔ کہ کیا جہیز دیا؟ کہ ڈولی اٹھا کے 3 میل تک روتا چھوڑ کے آیا ہوں، اور ہر قدم پر دعا کر رہا تھا اللہ سہاگنی رکھنا، سہاگنی موت دینا۔ میری بہن وہ جاری رزق کی دعا کرتی ہو، اولاد کی دعا کرتی ہو، رات کو جب بھی آنکھ کھلے بسترے میں بیٹھ کے جھولی پھیلا کر اپنے شوہر کو سوتے ہوئے دیکھ کے کہا کرو اللہ میری زندگی نلا دے، خدا کی قسم اگر زندگی میں شوہر دنیا سے چلا گیا ایسی رلے گی منہ لگانے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میرے عزیز و گندی تہذیب میں اتنی گر گئی، یقین جانو لاوارث عورت کو اس وقت تک کپڑے نہیں دیتی جب تک ان کے روٹی نہیں دیتی جب تک ان کے کپڑے نہ اتار لے۔ اور میرے ویرا خدا را ہمیں کیا پتا تھا عزت بچانے کے لیے اور 2 روٹیاں لینے کے لیے خدا کی قسم عزت بیچنی پڑ جائے گی۔ اور کس دنیا کے اندر رہتے ہو؟ پوری دنیا کا کفر آج مسلمانوں پہ تھوک رہا ہے۔ کہتا ہوں لوگوں تم مسلمان نظر آتے ہو، تمہارے اندر اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ سال تو کرونا وائرس کی نظر ہو گیا، اللہ ہر سال اپنا گھر دکھا دیتے۔ پچھلے میرے عزیزوں میں جب سال گیا جس لائن میں لگے ہوئے تھے معذوروں کے لیے تو علیحدہ خانہ تھا، میں اپنا پاسپورٹ بیوی بچوں نے دکھایا، سائٹ پہ بیٹھ گئے، ہم انتظار کر رہے تھے کون لینے کے لیے آئے گا۔ اتنے میں میرے عزیزوں مسلمانوں کی لائن جس میرے عزیزوں ریک میں لگی ہوئی تھی، جس خانے میں پاسپورٹ یوں دیکھ کے پرے چلا گیا۔ میں نے کہا واہ اللہ، مسلمان نے نبی کی زندگی کو چھوڑا، اسلام کے مرکز کے اندر مسلمان کی عزت بھی محفوظ کوئی نہیں رہی ہے۔ او لوگوں آج ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے کہتے ہو میں انگلینڈ جانا، ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے، ان کے کتے نہلاتے ہو، خدا کی قسم جن کی دنیا میں بھی اوقات کوئی نہیں آخرت میں بھی اوقات کوئی نہیں۔ حضرت علی کے میرے سمیت سارے چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرما والا وہ بندہ، نصیبہ والا وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ صبح بچوں میں ناشتہ کر کے گیا، تھوڑا بہت کما کے شام کو بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لیا، اس کا پیٹ بھی بھر گیا، اس کے بچوں کا اسے ساتھ بھی مل گیا۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ ڈالر تو کما رہا ہے لیکن مرنے کے بعد بچوں کا کندھا نصیب ہی نہیں ہو رہا۔ دو کام کر لو ضمانت، مسجد کے اندر نہیں کہا کرو بیٹی آج گھر جا کے باپ کو کہہ دینا ابا بے شک ہمارے پاس 4 مرلے کا مکان ہے، ہماری برادری 600 آدمی کی، ابا جان شادی پر سب کو بلا، شادی حال میں برات بٹھا کھانا کھلا، لیکن ابا میں نے شادی حال میں سے رخصت نہیں ہونا، میں تو اس گھر میں رخصت ہوں گی جہاں سے میں نے 22 سال جہاں گزارے۔ ابا 22 سال میں 15 سال تو میں نے نمازوں کے سجدے کیے، 5 سال تو میں تکا بیٹھی، ابا جان سحری افطاری میں قرآن پڑھا کرتی تھی، تسبیح پڑھیے میں درود شریف پڑھا کرتی تھی، ابا مجھے اس گھر سے رخصت کر جہاں کے درختوں نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھا، ابا جان اس گھر سے مجھے رخصت کر جس کی چھت نے مجھے سجدے کر کے دیکھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یقین جانو جب دلہن بن کے جائے گی ساری یہ 15 سال کی رحمتیں تیری جھولی میں جائیں گی، پھر عزیزو اولاد آنے کا وقت ہوگا، آنکھیں کھول کے دیکھنا بیٹی
پیدا ہوئی چہرہ رابعہ بصریہ کا نظر آئے گا، اگر بیٹا پیدا ہوا چہرہ عبد القادر جیلانی کا نظر آئے گا۔ ایک اور آپ سے گزارش کروں گا، جب رشتہ طے کرو ساری باتیں طے کر لو، لیکن کہنا میاں دودھ پلائی کی رسم تمہارے کرتے ہوں گے، ہمارے تو نہیں کرتے، اگر تم نے کرنی ہے کریں گے، لیکن سسرال والوں کو ساس سسر کو مجبور نہ کرنا سونے کی انگوٹھی پہناؤ، ہم سونے کی انگوٹھی کے مالیت کے پیسے دے دیں گے، 20,000 روپے ڈال کر تیری مرضی موٹر سائیکل لیا، 20-30,000 ڈال کے عمرہ جا کرا، سونے کی انگوٹھی پہنائیں گے، میں وہ اپنی بچی کے شادی میں نہیں دوں گا جس چیز سے آمنہ کے لال کی آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے امتیوں اور گجرا والے کے غیور مسلمانوں، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ فرمایا وعدہ دو میری امت کا مرد سونا نہیں پہنے گا، وعدہ کرو چھلکنے والا ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا، مرنے کی دیر ہے جنت کے 8 دروازے پہ کھڑے ہو کے میں محمد تمہارا استقبال کروں گا۔ لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ کسی پروگرام میں جاتے ہو، کسی شادی میں جاتے ہو، ایک اتنا بڑا بینر لگا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اہلا و سہلا مرحبا۔ پڑھے لکھوں سے پوچھ لو، غیر پڑھے لکھوں سے پوچھ لو کیا مطلب، کہا جی خوش آمدید، تمہیں کس نے کہہ دیا اس کا مطلب خوش آمدید ہے؟ آؤ میں آج تمہیں بتاؤں نکاح کسے کہتے ہیں۔ نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، 2 فرض 1 واجب 3 سنتیں۔ برات بوئے پر شادی حال میں آ کے بیٹھ گئی، مولوی صاحب فارم لے کے آیا، کرسی پر آ کر دولہے کے ساتھ بیٹھ گیا، میرے عزیزوں بیٹھ کے کہا میاں فلاں فلاں کی بیٹی فلاں باپ ہے، اتنا حق مہر ہے فلاں فلاں، موجود ان وکیلوں کے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، تو نے قبول کیا۔ مولوی صاحب نے آفر کی، لڑکے نے ایکسپٹ کیا، جی ہاں پہلا فرض 2 گواہ جو اس وقت موجود ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، دوسرا فرض 1 واجب ہے۔ دروازہ بجا، کون؟ علی المرتضی، آ جاؤ اندر۔ ہاتھ علی آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا خیر ہوئے، کملی والے بات شرم والی میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا بات ہے؟ اتنے میں شانوں والے ابو بکر عمر دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے، علی اسی پیچھے ہے نا تو کر، علی اسی پیچھے ہے نا۔ خدا کی قسم میرے عزیزو، خدا کی قسم میرے عزیزو، ابو بکر عمر نے کہا تھا علی ہم ہے نا، فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، یقین جانو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باغ کا آج رولا پڑا ہوا ہے، باغ کھا گئے، اور دور نبوت کے بعد صدیق عمر کے دور میں کوئی یتیم بے سہارا نہ رہا، محمد کے گھرانے والے کیسے بے سہارا رہ جاتے ہیں؟ بے شک اگر آقا کی بیٹی کا باغ میرے عزیزو صدیق کھا جاتا تو 1400 سال کے بعد جس نے صدیق کو پہچانا آج وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے یوں نہ کہتا کہ آقا نے سب دے قرضے ادا دنیا تے کر چھوڑے، محشر انہوں خود لے نہ بقایا صدیق نے۔ 5 دن حضور کی وفات شریفہ کے رہ گئے، اللہ کا نبی غسل کر کے منبر پر آ کر بیٹھے، فرمایا او لوگو جس نے کوئی میرے سے لینا ہو لے لے، لیکن ابو بکر تو اس سے باہر ہے، یوں نہ کہہ دینا میں نے لینا ہے۔ ابو بکر جس نے میرے پر احسان کیے، میرے سب کے بدلے چکا دیے، عمر دیکھنا کون ہے، بلال دیکھ کون ہے، عثمان دیکھ جو سر جھکا کے جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ سمجھے آج اسلام کا قلعہ فتح ہو گیا، ابو
अबू बकर समझ के रोने लगा, आज मोहम्मद के जुदा होने का वक्त आ गया है। आपने फरमाया अबू बकर उमर देखो, उमर उस्मान अली देखो, वो कौन है? अबू कहाफा का बेटा, आयशा का अब्बा सिद्दीक अकबर है। फरमाया जा उमर इसके कंधे पे थापी दे। फरमाया आज मोहम्मद रोजे में तेरे एहसान लेके जा रहा है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा किसका एहसान लेके आया? अबू बकर तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के दरबार में ले जाऊंगा। या अल्लाह, अबू बकर ने माल भी लुटा दिया और जान भी हथेली पे गार में लेके बैठ गया था। अबू बकर ने बेटी की कुर्बानी भी दे दी। अबू बकर ने तल के कपड़े उतार दिए। रहमत वाला नबी अल्लाह के दरबार में फरमाया अबू बकर को लेके जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा महबूबा अबू बकर के एहसान गिनाना तेरा काम है, आज एहसानों के बदले चुका देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। मैंने एक अल्लाह वाले से सुना था, अल्लाह फरमाएगा अबू बकर तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं, आज तेरी सिफारिश पर मैं जहन्नम के दरवाजे बंद करूंगा। अल्लाह कहेंगे या अल्लाह ठीक है, महबूब के उम्मतियों को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएंगे पहली चुल्लू भरूंगा हुजूर के उम्मतियों की, अपने बंदों की पहली बुक भरूंगा, और यूं करके मैदान माशर में से उठा के जन्नत की तरफ। हुजूर ने फरमाया पता है अल्लाह ही जानता है कितने आएंगे, लेकिन जिब्राइल ने कहा पहले चुल्लू में अल्लाह के हाथों में जन्नत में जाने वाले 8 लाख आदमी आएंगे। अल्लाह अबू बकर तेरी सिफारिश पर 8 लाख आदमी जाएगा। और मैं अबू बकर जब खुदा को चेहरा दिखाएगा मैदान माशर में अल्लाह का गुस्सा ही ठंडा हो जाएगा। और शान सिद्दीक अकबर खिलाफत राशिदा इंशाअल्लाह निजाम आने वाला है करीब, अल्लाह के बंदों करम इंशाअल्लाह। अबू बकर सी है ना कर बात। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मशुरा दे के अंदर भेजा, जा हुजूर की बेटी का रिश्ता मांग किया, बस मुख्तसर करूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ या अल्लाह अपने नबी के दिल में डाल दे मेरे भाई अली को ना करे। हुजूर अलैहिस्सलाम अली नू देखो ते सानू भी देखो, साडी दाढ़ियां चिट्टियां हो गया तेरे पैरों में बैठे बैठे, गारंटी देते हैं तेरी फातिमा को अली खुश रखेगा। हुजूर अंदर तशरीफ लेके जा रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोचा साढ़े बल भी तक को। हुजूर ने फरमाया क्योंकि मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। मैं झटकी जी जुबान गल करदा भाई, मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। क्या अल्लाह जल्ला शानू ने ओए बदबख्तो ओ लईनो ओ जहन्नम के कुत्तो, तुम्हें कौन कहता है हम अली को नहीं मानते? खुदा की कसम हम अली को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने मनवाया है। अली रज़ी अल्लाह ताला मेरे अजीजों जब दरवाजे पे आके खड़े हुए जिब्राइल कहने लगे मैं सिफारशी मनना, तुम अली को शेर खुदा मानते हो, हुसैन का बाबा मानते हो, तुम अली को फातिमा का शोहर मानते हो, गोहर मानते हो, तुम अली को विलायत का पैकर मानते हो। इस स्टेज पर कारी रफीक साहब की मस्जिद में तुम्हारे दांतों को मुंह को तोड़ के जाऊंगा। खुदाए पाक की कसम है हम अली को कैसे मानते हैं जैसे जिब्रील ने मनवाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अर्श वाला रब कह रहा है मैंने तेरी बेटी के लिए सारे जहान को देखा, अली से बेहतर मुझे रिश्ता कोई पसंद नहीं आया। अब भी तुमको बदबख्तो, तुम अली को मानो, तुम अली की शान बयान करो, तुम्हारे मुंह से गिलाजत की बुग़्ज़ की बदबू आती है, और हम अली का शान बयान करें खुदा की कसम फजर तक ता हयात हमारे मुंह से सहाबा की अज़मत की खुशबू आती है। नहीं यकीन आता मैदान माशर में तू भी आ जाना, हम भी आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे अली पर भोंकने वाले को लेके आ, अली के चाहने वाले को लेके आ। या अल्लाह पहचान क्या है? फरमाया अली के भोंकने वाले से के मुंह से गंदी जहन्नम की बदबू आ रही है। सिद्दीक अली का नारा लगाने वाले के मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही है। गुजरा वाले
کے گگڑ کے غیور مسلمانوں، قرب و جوار سے صحابہ کے شدائیو، جملہ سنبھالنے نہ دے کے جا رہا ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ میرے جملے کو میرے عزیزو ایسے ہی نہ رول دینا بلکہ قدر کرنا۔ آؤ ذرا ہجرت کی رات چلے، گود صدیق کی وجود مصطفیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ بیٹیوں کے حق کھانے والے کی گود محمد کیسے آباد کر سکتا ہے؟ جب تیرا عقیدہ یہ زمین آسمان کی خبر جانتے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا جس کی گود میں لیٹا ہوا ہوں یہ میری بیٹی کو معاذ اللہ دھکا دے گا، بلکہ انہیں تو ان کی گود پہ اتنا اعتبار تھا، حضور نے صدیق کے نبوت والے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور 100 ننگی تلواریں بار دے، جملہ بچانا، 100 ننگی تلواریں دیکھ کے فرمایا تھا یارا اور میرے سنگتیا اور میرے بیلیا، دنیا اور جنت کے میرے یار، راتیں 3 دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزے میں سلا کے قیامت تک تیری پہرے داری۔ صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، جس کے عرض پر، جس کے عرض پر، کا نعرہ جس پر فرش پر، کا نعرہ جس کا فرش پر، گلی گلی نگر نگر، صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اماں فاطمہ جب کفن میں لپٹی ہوئی پڑی تھی، اماں فاطمہ جب کفن میں لپٹی ہوئی پڑی تھی، کندھے پر کس کے کندھے پر کس نے ہاتھ رکھا؟ صدیق کے کندھے پر علی نے ہاتھ رکھا اور کہا علی جی، صدیق جی، پیارے جی، یار غار جی، نبوت کے وفادار جی، نبوت کے ہمراہ جی، آجا صدیق، تیری گودی میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آتا ہے، تیرے کردار میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آتا ہے، تیری صورت میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ ابو بکر، صرف تیرے میرے میں فرق یہ ہے، تیرے سر پر تاج نبوت نہیں، میرے سر پہ تاج نبوت ہے، قرابت اتنی ہے جتنا اللہ نے میرے سینے میں ڈال دیا وہی کچھ اللہ نے تیرے سینے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ علی جی، کیا جی، کہاں نظر آگے؟ علی بیوی تیری میری نہیں، تیرے بچوں کی اماں میرے بچوں کی نہیں۔ حضرت علی نے حضور کے روزے کی طرف دیکھا، آنکھیں برسنے لگی، دل دھڑکنے لگا، کہا صدیق جی مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب حضور نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، صدیق آئے، ابو بکر نماز ہو گئی، اللہ کے نبی ہو گئی، تو پڑھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی؟ فرمایا جا مصلی خالی جا کے آباد کر۔ یا رسول اللہ نماز ہو گئی، نہیں ہوئی، نماز ہو گئی۔ ابو بکر آج اللہ تیرا منصب، آج تیری عظمت بتلانا چاہتا ہے۔ جنہوں نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی عمر کو ان سمیت لے آ اور کہا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، عمر تو اقامت پڑھنی شروع کر دے، صدیق تو نماز پڑھانی شروع کر دے۔ یا اللہ جنہوں نے پڑھی وہ دوبارہ کیسے فرض پڑھیں گے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر تیرے فرض ادا ہو جائیں گے، امت کے نفل ادا ہو جائیں گے۔ ابو بکر مصلی پہ نام ہے، تیرے علاوہ کسی کو دیکھ سکتا ہوں نہ میرا خدا دیکھ سکتا ہے۔ علی جی آؤ نہ پھر مصلی پر آؤ، فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤ، آؤ نبوت کی بیٹی کا حق ادا کرو۔ جب صدیق نے اللہ اکبر کہا تو پھر 1400 سال بعد میں نے یوں کر کے دیکھا، پھر میں نے دیکھ کے کہا اللہ اکبر، امام خود ابو بکر حیدر مقتدی، امام خود ابو بکر حیدر مقتدی، زہرا دا خود جنازہ پڑھایا، صدیق نے زہرا دا خود جنازہ پڑھا، یا صدیق سے زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ ذرا میرے عزیزو باغ فدق کے بارے میں بھی معلوم کر لیں بچڑو۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جڑا کالے رنگ دا ساوا رومال، کالے رنگ دا رومال لے کے باغ کھا گئے، تسی ساڈا دماغ کھا گئے بے غیرت۔ بہت خوب، خیبر فتح ہوا، ایسے ہی خیبر فتح ہوا،
खैबर का हिस्सा फतेह में आया, कुछ बगैर लड़ाई के हिस्से में आया। वहाँ एक बाग था जिसके अंदर 13 दरख्त थे, बाज़ जगह 9 दरख्त। हुजूर ने फरमाया खैबर के अंदर जितने खजूरों के बाग हैं सहाबा में तकसीम, इनका फल सहाबा के घरों में जाएगा। इन 13 दरख्तों का फल मेरी अहलुल बैत और मेरी अज़वाज के घर के अंदर जाएगा। हुजूर की हयाती में वो दरख्त के फल आते रहे। जब नबी दुनिया से रुखसत हुए तो 2 नुमाइंदे, हजरत उस्मान को अम्मा आयशा ने, अम्मा हफ्सा ने हजरत अबू बकर के पास भेजा, हजरत अली को अम्मा फातिमा ने भेजा, जाओ अली जी पूछ के आओ जिस दरख्त के खुशबा, जिस दरख्त से फल हमारे घर में आया करता था अब क्या हुक्म है, वो हमारा कई मुसलमानों का। अम्मा आयशा अम्मा हफ्सा ने भेजा, जाओ अब्बू जी या तो नबी की बेटी को ना दिया और अपनी बेटी को दे दिया फिर तो सिद्दीक में उंगली उठती है, जो जवाब अपनी बेटी को दिया वो नबी की बेटी को दिया। फरमाया फल जब तक सिद्दीक जिंदा है दरख्तों का तुम्हारे घर में आता रहेगा, लेकिन बाग तुम्हारी मिल्कियत में नहीं आएगा। बेटी फातिमा तो मेरी भी बेटी है, मेरे नबी की आंखों की ठंडक तो सिद्दीक के ईमान की जला है। उस वक्त जब हुजूर का जनाजा पड़ा हुआ था सारे सहाबा परेशान थे, क्या करे, तो मेरे मिंबर पे खड़े होकर कहा था ये राज भी मेरे सीने में छुपा हुआ है। हुजूर ने फरमाया था जहां नबी दुनिया से जाए वही कब्र बनाई जाती है। मेरे कहने पे कब्र बन गई। जिन कपड़ों में नबी दुनिया से रुखसत हुआ उन कपड़ों में कफन दो, उससे बेहतर कपड़ा कोई नहीं, ये भी मेरे कहने पर हुआ। अल्लाह अकबर। जनाजे का मसला आया तो मैंने हुजूर से पूछा था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था नबियों की इमामत नहीं होती, फरिश्तों की टोली आएगी, इंसान आएंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। जब नबूवत की अमानत पर मेरे पर एतबार है तो बाकी अमानत पर मेरे पर एतबार क्यों? जब नबूवत खुदा ने मेरे हिस्से में डाल दी, जब नबूवत को गोद में ले सकता हूँ, फातिमा तेरा बाग अबू बकर नहीं खा सकता। अपने चाहने वालों के आगे मेरी तरफ से हाथ जोड़ दे, मेरे गिले ना किया करो, तेरे बाबा की आंखों में रोजे में आंसू आ जाते हैं। मैंने ये हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था नबियों की विरासत इल्म होता है, माल नहीं हुआ करता, तरके में जो माल बचता है वो उम्मत के हिस्से में आता है। बेटियों अबू बकर अपनी बेटी आयशा से ज्यादा तेरा एहतराम करेगा, माँ का मकाम अपनी जगह। किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा, सुन ला, किसी ने अल्लाह वाले से पूछा हजरत सिद्दीका का मकाम ज्यादा या फातिमा ज़हरा का मकाम ज्यादा? अल्लाह वाले ने कहा या अल्लाह अगर सिद्दीक की बेटी का बड़ा हो तो नबी की बेटी का घट गया, नबी की बेटी का बड़ा हो तो कुर्बानियों वाले सिद्दीक का घराना घट गया। या अल्लाह कोई ऐसी बात दे दे क़यामत की सुबह तक सिद्दीक के चाहने वालों को, अम्मा आयशा के दुपट्टे को सजाने वालों को कोई क़यामत तक नीचा ना दिखा सके। फरमाया फातिमा, अल्लाह अकबर, फातिमा नबी की बेटी, आयशा सिद्दीक की बेटी, भला सिद्दीक की बेटी नबी की बेटी से आला कैसे हो सकती है? फिर फरमाया आयशा नबी की बीवी, फातिमा अली की बीवी, भला अली की बीवी नबी की बीवी से कैसे आला हो सकती है? तकबीर, सिद्दीक़ अकबर, जाने अम्मी आयशा सिद्दीक़, फतेह अम्मी आयशा सिद्दीक़, अरे तकबीर। ये अपना एजाज लेके बैठी, अपना एजाज लेके बैठी। अगर ये उम्मत का वफादार है तो ये नबूवत का वफादार है। उसने उम्मत के लिए कुछ नहीं बचाया, इसने नबूवत के लिए कुछ नहीं बचाया। सुभान अल्लाह। दोवां दीदियां आमने सामने, एक कहने लगी मेरा बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरी अम्मा खदीजतुल कुबरा, मेरा बेटा हसन मुजतबा, मेरा बेटा शहीद करबला, मेरी मेरी बहन ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम। अल्लाह अकबर। जब फातिमा ने सारे वो साफ को नहाए तो अम्मा आयशा ने भी आंसुओं को साफ किया। का बच्ची नाराज न होना, जो तू कहती रही मैं सुनती रही, आज मुझे कहने दे तुझे सुनना पड़ेगा। का शानों वाले नबी की जिंदगी में तूने 19 साल हुजूर के करीब रह के गुजारे, तूने कभी तो सुना होगा इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, वल मुमिनीन वल मुमिनात, वल कानितीन वल कानिता। सुना? हाँ अम्मा सुना। मतलब क्या? क़यामत का दिन होगा, नेक औरत नेक मर्द का हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगी। बेटी जन्नत में तू भी जाएगी, तेरा हाथ जब जाएगी अली के हाथ में होगा, जब मैं जाऊंगी तो मेरा
हथ नबी के हाथ में होगा। पूरी दुनिया के जरिए हुकूमतों तक, इदारों तक, सरबराहान अफवाज तक मैसेज जा रहा है। पूरी तकरीर में बताओ, हमने किसी को गाली दी ही नहीं, हमने तो किसी का शान घटाया नहीं। लना मालूना वलकुमा मालुकुम। खुदा की कसम इतना जरूर कहूंगा, जो सहाबा पर भौंका कुत्ते की तरह मरता नजर आया, जिसने सहाबा की इज्जत का नारा लगाया, आज अल्लाह ने उसे सहाबा के कदमों में सुलाया हुआ। अल्लाह ने यही बतला दिया, आला कौन है, घटिया कौन है। क़यामत तो बड़ी दूर की बात है। सिद्दीक पर 1-5 मिनट के लिए उंगली उठाई, अल्लाह ने बच्चों से दूर, बीवी से दूर, मुल्क से दूर, अपनों से दूर, रिश्तेदारों से दूर फरमाया। ये तो दुनिया के अंदर एक प्रैक्टिकल है, क़यामत का दिन होगा मोहम्मद की शफाअत से भी दूर कर दूंगा। जाना ही कोई नहीं, सिद्दीक खड़ा होगा, तुझे कैसे आने देगा। ना ना मेरे अजीजों, छोड़ दो गिले, छोड़ दो गिले। सहाबा को वैसे मानो जैसे अहले बैत ने माना, और अहले बैत को ऐसे मानो जैसे सहाबा ने माना। अल्लाहु अकबर। सुनो मेरे अजीजों, मेरा मेरी बात ही मुकम्मल नहीं हुई। सहाबा को, अहले बैत को ऐसे मानो जैसे सहाबा ने माना, और सहाबा को ऐसे मानो जैसे अहले बैत ने माना, और अहले बैत सहाबा को ऐसे मानो जैसे मुस्तफ़ा ने माना है। सुनो, क्यों दलील देना, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदू गयदम मिन बादी। हाथ जोड़ के जाना, मेरे अबू बकर दी शान में गुस्ताखी ना करना, उमर को कुछ ना कहना। अल्लाह अकबर। जैसे एक जमात का अल्लाह ने नबियों में इंतखाब किया, पूरी जमात में अल्लाह ने मेरे सहाबा का इंतखाब किया। फरमाया मैं चंद सहाबा सितारे, माशाअल्लाह। और मुस्तफ़ा ने कैसे माना, जैसे खुदा ने माना, का उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। मैंने अंदर से देखा, अल्लाह अकबर, मैंने बाहर से देखा। मैंने बाहर देखा तो ईमान का सेहरा नजर आया, अंदर झांक के देखा तो मुस्तफ़ा की गुलामी का सेहरा नजर आया है। आज मेरे अजीजों, इस मसनद पर बैठकर 12 बज रहे, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, आज मेरे अजीजों सिर्फ सहाबा का नारा नहीं लगाना, बल्कि सहाबा की गुलामी को अपनाना है। वो इंशाअल्लाह सहाबा की गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे, हुजूर की ताबेदारी में जिंदगी गुजारेंगे, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे। इतनी सी मेरी बात रह गई, उधर 8 मिनट रह गए, बात भी 8 मिनट की रह गई। ये जुमला मुकम्मल कर दूं कि हजरत अली दरवाजे पे खड़े, खाली गए या कुछ लेके गए। हजरत अली से हुजूर ने पूछा क्यों आए, कहा या रसूलल्लाह, आपने ऐलान नबूवत फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपने ऐलान किया, मुझे आप पर, आपकी बात पे इतना यकीन आया, मैं घर से जूता भी पहनना भूल गया, नंगे पैरी मोहम्मद आ गया। मेरे दिल मेरे रात आप में गुजरे, अगर आपने नहीं खाया तो खाया मैंने कोई नहीं, अगर आपने नहीं पहना तो पहना मैंने कोई नहीं, अगर आपने भी पानी में प्यास से जिंदगी गुजारी तो मैंने भी गुजारी। मोहम्मद, तू दरख्तों के नीचे बैठ के कुरान पढ़ा करता था, मैं तेरे कदमों में बैठ के कुरान सुना करता था। या रसूल अल्लाह, अगर लोग आप पर मक्के में पत्थर मारा करते थे तो मैं नन्ही बाहें फैला कर तेरे वजूद की हिफाजत किया करता था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हिजरत की रात सिद्दीक के कंधे पर चले गए तो मैं सारी रात तेरे बिस्तर पे लेटा रहा, बिस्तर मेरे हवाले कर दिया, अल्लाह की अमानत सिद्दीक के हवाले कर दी। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ ये कनेक्शन, ये रिश्तेदारी, ये मोहब्बत ताल्लुकदारी के अंदर बदल जाए और पक्की रिश्तेदारी के अंदर बदल जाए। हुजूर ने देखा, मुस्कुराने लग गए। अल्लाह अकबर, अली ठहर जा, मैं भी आया। फातिमा जी, अली आया है। बेटी मैं
تو ना नहीं करता तो अपनी बता, कहा अब्बा ना नहीं करता तो बेटी कैसे ना करेगी। हुजूर बाहर आए, आपने हज़रत अली को बुलाया, बाह फैलाई, आपने फरमाया आला आजा, उठे क्यों खड़ा, सीने न लग जा। बसाला, मुझे पता है तेरे घर में मंजी भी कोई नहीं, तेरे घर में बर्तन भी कोई नहीं, बेटी को जहाँ ठहराएगा तेरे घर में मकान भी कोई नहीं। अली साला, निकाह महंगा नहीं करूंगा, तेरी शादी का जोड़ा भी मैं दूंगा, बेटी की डोली जिस घर में जाएगी वो डोली भी मैं दूंगा। ऐ अली, तेरी शादी का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, खाना मैं दूंगा। लेकिन अली एक बात में माजरत, जी या रसूलल्लाह, पर अली निकाह में तीसरी चीज वाजिब हक मेहर है, भावे ज़िना बेच, भावे कपड़े बेच, वो तुझे हक मेहर लाना पड़ेगा। बेटी को मकान मोहम्मद देगा, लेकिन बेटी का हक मेहर तुझे लाना पड़ेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला हक मेहर लेने के लिए मदीने के बाजार में ज़िरा लेके गए, कौन मिला? और मेरे अजीजों, हज़रत अली को आपका भाई अकील भी तो मिल सकता था, आपका रिश्तेदार मेरे अजीजों अबू ज़र गफ़ारी भी तो मिल सकता था, अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने का बड़ा ताजिर वो भी तो मिल सकता था, लेकिन कौन मिला? फरमाया कभी दूल्हा बनकर उस्मान दरवाजे पर आएगा, कभी दूल्हा बन के अली मुर्तजा आएगा। जेड़े मेरे अजीजों साड हुआ करते हैं, उनकी आपस की बात राज राज हुआ करती है, कभी ये साडू पर, कभी ये साडू पर। हाँ जी क्या है? हुजूर की बेटी का मेहर पैसे कोई नहीं, क्या कर रहा है? ज़ीरा बेच रहा हूँ, कितने में? इतने में, ले पैसे ज़ीरा ली। अली का उस्मान तेरा शुक्रिया। जाने लगे अली जी का जी यार की शादी हो, खाली आंधिया रोटी खांधिया शर्म आंदी है, की तोहफा लेगा? अली हो उस्मान, अब तू क्या तोहफा देगा? तूने इतना बड़ा एहसान कर दिया, सीने न ठंड खा दे। भाई भाई पर एहसान नहीं किया करते, भाई भाई के काम आया करते हैं। आजा आज सीने से सीना मिलाकर राज़ियों को बता दे, आज सीने से सीना मिला, आज भोंकने वालों को बता दे, मोहम्मद ऐसा पैगाम लेके आया जो यारों को तोड़ने नहीं आया, कयामत तक यारों को जोड़ने के लिए आया। सुनो माशाअल्लाह, शान अहले बैत, शान अहले बैत, शान अम्मा फातिमा, शान हुसैन, शान अली मुर्तजा, शान सहाबा। सुनो आगे आखिरी बात मेरे अजीजों। हाँ जी वीर जी, एडवांस मुबारकबाद, एडवांस तोहफा क्या? ये ज़ीरा ले जा। कि क्यों? का हक मेहर इस ज़ीरा की कीमत में से अदा कर दे, तोहफा ले जा। जब तक मैदान में तलवार चलाता रहेगा, ज़ीरा पहनता रहेगा, ज़ीरा इस्तेमाल करता रहेगा, तलवार मैदान में चलती रहेगी, सवाब उस्मान के खाते में आता रहेगा। बाकी गल्ला गल मुकदिया मुका दवा, खुदा की कसम 1400 साल हो गए ने जुदा करते हुए, जुदा होने वाले मट्टी में जाके मट्टी हो गए। लेकिन मेरे अजीज़ों आज भी ये नारा लग रहा है कि ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन थाम सहाबा का। दुआ करवा दे, दुआ करवा दे, दुआ नारे अहले बैत जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, अहले सहाबा जिंदाबाद, अहले सहाबा जिंदाबाद, अहले सहाबा जिंदाबाद, अहले सहाबा जिंदाबाद। आज नियत करो खुदा के वास्ते, आज नियत करो अहले बैत को अपने माथे का झूमर बनाओगे, सहाबा को अपने सर का ताज बनाओगे। अहले बैत भी हमारे, सहाबा भी हमारे। सहाबा पर जो भौंके वो भी लानती, अहले बैत पर भौंके वो भी लानती। हमारा ईमान है खुदाए पाक की कसम, जहाँ अल्लाह क़यामत के दिन सहाबा के बारे में पूछेगा, अहलुल बैत के बारे में पूछेगा, कहेगा सिद्दीक के साथ फिर प्यार कितना था और फातिमा के बच्चे हुसैन के साथ प्यार कितना था। आज मेरे
अजीजों, अल्लाह के वास्ते नफरत को मिटाओ। तुम्हारे मोबाइल की फेसबुक पर कोई ऐसा क्लिप आ जाए, फौरन डिलीट कर दो ताकि कोई आगे देख ना सके। यूं ना कहा करो अगर जो इसे 15 आदमी शेयर करेंगे कयामत के दिन की सवाल। और ना यारो, हमने तो सहाबा के गिले करने वालों को सहाबा की मोहब्बत में लेकर इंशाअल्लाह ताला आना है। हमारा दीन, हमारा ईमान, हमारा मजहब हमें लड़ाई का दर्श नहीं देता, हमें प्यार मोहब्बत का दर्श देता है। जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर कुर्बानियां देते आए हैं, अब तक कुर्बानियां दे रहे हैं। अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां मौलवियों ने दी, हमने दी, नबी के गुलामों ने दी। सहाबा की इज्जत पर कुर्बान, अल्लाहु अकबर, नबी के गुलाम हुए। अहलुल बैत का हक बचाने के लिए अहलुल बैत नबी के गुलाम आबाद हुए, इस बाप को गुलाम शहीद हुए, अल्लाहु अकबर कुर्बान हुए। इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए नबी के गुलाम कुर्बान हुए। पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान का अमन बरकरार रखने के लिए, पाकिस्तान के अंदर बामी अमन और भाईचारे के लिए, पाकिस्तान में प्यार मोहब्बत को फरोग देने के लिए, नफरतें मिटाने के लिए, आपस के अंदर दुख दर्द बांटने के लिए इंशाअल्लाह खत्म नबूवत हो, जमीयतुल उलमा इस्लाम हो, सिपाही साहबा हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अवान हो, पठान हो, लेकिन शर्त है कि मोहम्मद का गुलाम हो। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर अमल का दर्स देते रहेंगे। आज झोलियां मेरे अजीजों फैला के दुआ करो, इंशाअल्लाह साडा पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान की बहारों को अल्लाह सलामत रखे। जहाँ इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया, बस सारे मेरे अजीजों नारा लगा, पाकिस्तान पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान। अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान की जितने सिक्योरिटी इदारे जो रखवाली कर रहे हैं वो सारे के सारे आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।